तारीख 27 मे 1996 सन आस्था भोटर बितर्कत बाजपेयीर उदात्त भाषण एया मोर पदत्याग अध्यक्ष महोदय लगे लगे पतन घटिছিল बाजपेयी 13 दिनिया सरकाৰৰ किन्तु देशवासीर हृदय जिनिছিল बाजपेयीয়ে। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। तार पाछते प्रथमे 13 माह और 5 बছৰ कार्यकाल सम्पूर्ण करा प्रथमजन अकंग्रेसी प्रधानमंत्री हल बाजपेयी। प्रधानमंत्री हुए पोखराणर पारमाणविक परीक्षण सम्पूर्ण कर संसदत बाजपेयी दिया भाषणत सूत्रपात भारतर विदेश नीतिर नतुन अध्याय। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। मैं क्षमतार बारे लालायित নহয়, मृत्युको मैं भय नकरो। आस्था भोटर बितर्कत एया आसिल बाजपेयीर दृढ़ अटल स्थिति। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। लेकिन फिर मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। हमारे फिर एक दूसरा आरोप लगाया जा रहा है। आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। अकल भारतते নহয় 2000 सनत मार्किट संसद कपि उठिছিল बाजपेयीर उदात्त भाषणत। Honorable members of the United States America Congress, it is with a deep sense of honor that I speak to you today. I would like to thank you, Mr. Speaker, and the members of the Congress for giving me this opportunity. In November 1999, a remarkable event took place in the House of Representatives. By a vote of 396 to 4, the House adopted a resolution congratulating India and my government on the successful elections completed in October 1999. This display of broad-based bipartisan support for strengthening relations with India is heartening. It is a source of encouragement to both President Clinton and to me as we work together to infuse a new quality in our ties. I thank you for the near unique approach that you have adopted towards my country. Those of you who saw the warm response to President Clinton's speech to our parliament in March this year will recognize that similar cross-party support exists in India as well for deeper engagement with the United States of America. I am also deeply touched by the resolution adopted in the House of 2 days ago
welcoming my visit and the prospect of closer Indo-US understanding, I am equally encouraged by the resolution adopted by the Senate yesterday. পোখৰাণত পাৰমাণৱিক বোমা পৰীক্ষা কৰি আমেৰিকাৰ ৰোষত পৰিছিল বাজপেয়ী, কিন্তু মাৰ্কিন সংসদত ভাষণ দি বাজপেয়ীয়ে দিছিল শান্তিৰ বাৰ্তা। There was a time when we were on the other side of each other's globes. Today, on every digital map, India and the United States are neighbors and partners. India and the United States have taken the lead in shaping the information age. Over the last decade, this new technology has sustained American prosperity in a way that has challenged conventional wisdom on economic growth. We are two nations blessed with extraordinary resources and talent. Measured in terms of the industries of tomorrow, we are together defining the partnership of the future. ৰাষ্ট্ৰসংঘত 1977 চনত হিন্দীত দিছিল বাজপেয়ীয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ। বাজপেয়ী আছিল স্বপ্নদ্ৰষ্টা। 2002 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল। हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आतंकवाद का विरोध करने का दावा करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसके दोहरे मापदंड हैं। युद्ध में सफलता नहीं मिली तो सीमा पार आतंकवाद के सहारे कश्मीर को लेना चाहता है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं, অকল এয়াই নহয়, গভীৰ তত্ত্বগধুৰ ভাষণৰ মাজত হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা এক অদ্ভুত ক্ষমতাৰ অধিকাৰী আছিল বাজপেয়ী। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? नेशनल डेस्क, प्राग न्यूज।